going to cover the topic real numbers for class 10th mathematics as per the CBSE syllabus. Before we start with the topic, let's see what real numbers are. Real numbers can broadly be categorized in two parts, rational numbers and irrational numbers. Rational numbers further, if we talk about the rational numbers, they are numbers which can be expressed in the form of P by Q, where P and Q are integers and the denominator Q should not be equal to 0. As you know that any number divided by 0 is not defined, so this condition is also important. Further, if we talk about the decimal representation of these numbers, rational numbers की दो टाइप की representations होती हैं. First is terminating, second is non-terminating, but recurring or repeating. What it means? Terminating means which ends up after some decimal places. For example, if I take the number say 1 by 2, I know when we divide the numerator 1 by 2, what I get is 0.5. If I take the number 1 by 5, divide 1 by 5, what you get is 0.2. If I take the number say 3 by 10, if I divide 3 by 10, I'll get 0.3. So same way, as you can see, the number is ending up after few decimal places. And if I take the other ways, let's take an example for 1 by 3. If I divide 1 by 3, it will be 0.33333, which is continued. So we can say it is, in this case, we will never get the remainder 0. So this decimal representation is non-terminating. But non-terminating के साथ में one more thing will be there कि ये जो number है, one digit or a group of digits will repeat themselves. Like here 333 is repeating. So this can be written as 0.3 bar. So these are two type of rational numbers we have. On the other hand, when we talk about irrational numbers are the numbers which are neither terminating and nor repeating or recurring. So ये वो numbers हैं जिनका decimal representation ना ही कभी end होगा और ना ही कोई digit या कोई group of digit repeat करेगा. Let's take example. If I take the number say 1.0100100001 and so on. यहाँ पर 01 तो repeat हो रहा है but 010101 नहीं है. On the other hand, if I take an example here 1.010101 continue till infinity. यहाँ पर क्या हो रहा है 01 repeat हो रहा है. So I can write this as 1.01 bar. So यहाँ पर ये group repeat हो रहा है. So this is non-terminating but recurring. So this is a rational number. On the other hand, in this one 01 is there, then 001 is there, 0001 is there. इसमें क्या हो रहा है कोई भी digits तो repeat हो रही है but group हमारा repeat नहीं हो रहा है. So I cannot write this number with bar. So this is non-terminating as well as non-recurring numbers. Such numbers are irrational numbers. Let's take another example. 1.57634589 and so on. Few more examples related to this. Root 2, root 3. In fact, root of any prime number is irrational. Further, the value pi you have read. Pi is the number which is defined as ratio of circumference upon diameter. So this pi is an irrational number. The value that we use 22 by 7. If you divide 22 by 7, you will get a non-terminating but recurring number. So this is a non-terminating, recurring and hence rational number. Further, if you see the decimal representation, it is 3.14. Other value for pi that we use is 3.14, which is terminating. It terminates after two decimal place. So this is terminating. So these two are rational numbers, but the actual value of pi is 3.1415926, something like that, which continues till infinity. So this is irrational number. Clear? Now let's consider the conditions under which we can say a number is terminating or non-terminating but recurring
विदाउट एक्चुअली डिवाइडिंग। ये तो हमने डिवाइड करके फाइंड किया है, क्या हम इसको फाइंड कर सकते हैं कि बिना डिवाइड किए हम पता लगा सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग? यस वी कैन। उसमें हम क्या करते हैं, हम डिनोमिनेटर जो भी है नंबर का उसके फैक्टर्स चेक करते हैं। यहाँ पर फैक्टर क्या है, 2 है, 5 है, यहाँ पर 2 और 5 है, यानी कि Q और डिनोमिनेटर के फैक्टर्स 2 और 5 हैं, तब हम कहते हैं कि वो टर्मिनेटिंग होगा। और इस केस में क्या होता है कि Q के फैक्टर्स 2 और 5 के अलावा कोई और भी फैक्टर है, लाइक Q हैज फैक्टर other than 2 or 5. In this case, it is non-terminating recurring. As you can see, it is 3 here. Same way, if you take 1/6, इसका फैक्टर 2 है बट साथ में 3 भी है, तो ये क्या होगा, non-terminating repeating होगा. So I hope this is clear. Condition is clear. Let's take another example. If I take the number say 7/20, in this case the denominator is Q, which is 20. Now this 20 can be written as 2 into 2 into 5. It has factors only 2 and 5. So as per this condition, this is terminating rational number. Let's see, if you divide 7/20, what you get? Let's divide this. We take the decimal place, एक 0 यहाँ आ जाएगा. So this will go by 3. We get 60. Remainder 10. Further 1 0 will be there, then this will go by 5, so we get 100. So this is remainder is 0, so this can be written as 0.35. As you can see, it terminates after 1 and 2 decimal place. So this is the condition under which we can say a rational number is terminating or not. If it has some other factor, in that case it is non-terminating. Decimal representation of 1/6. Let's divide 1/6. What do you get? 0. We get 0 here. 1s are 6. 4 we get, and 1 0 will be there. 6. 6 are 36. Again the remainder is repeating. It was 4 earlier. Now it's repeating again. So it will go by 6 again. So we get 36. Same remainder is repeating. So this last digit will repeat itself. So we'll get 1.666 and so on. So I can write this as 1.6 bar. Clear? So here we have seen the condition under which it is terminating and under which we can say it is non-terminating but recurring. अभी हमने देखा कि हम डिनोमिनेटर को चेक करके कैसे फाइंड कर सकते हैं कि रैशनल नंबर कोई भी टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन. ठीक है, उसी को यूज करके अभी हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे और विदाउट एक्चुअल डिवीजन हम ये चेक करेंगे कि ये रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है. अभी हमने डिवाइड करके चेक किया था कि वो टर्मिनेट हो रहा है कुछ डेसिमल प्लेसेस के बाद कि नहीं. नाउ वी आर गोइंग टू चेक इट विदाउट एक्चुअल डिवीजन. नाउ हियर फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक वेदर दिस इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म और नॉट. सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए. 7/4 no common factor is there. Then we check the denominator Q. यहाँ पर Q क्या है, 4 है और 4 के प्राइम फैक्टर्स क्या हैं, 2 into 2. अब इसके फैक्टर्स सिर्फ 2 है. हमने कंडीशन क्या की थी, अगर Q के फैक्टर 2 और 5 हैं तो वो टर्मिनेटिंग है, अदरवाइज वो नॉन टर्मिनेटिंग है. अब इसमें फैक्टर्स क्या है, सिर्फ 2 है, सो दिस इज टर्मिनेटिंग. Let's see next example. 6/15. 6/15. If you go directly, Q is equal to 15, which has factors 3 and 5. So it has factor 3 other than 2 or 5. So it is non-terminating. But first condition क्या थी कि ये क्या होना चाहिए, simplest form में होना चाहिए. अगर हम इसको डिवाइड करके देखेंगे, this will go by 0.4. So हमने कहा मिस्टेक की, इसको पहले हमें simplest form में कन्वर्ट करना है, उसके बाद ही हम ये वाली कंडीशन चेक करेंगे, उससे पहले नहीं. सो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी, बोथ आर डिविजिबल बाय 3, सो दिस इज इक्वल टू 2/5. नाउ वी चेक द कंडीशन. नाउ Q is equal to 5, so it has only factor 5, so this is also terminating. So this is very important to check whether the number given to you is in simplest form or not. Okay. Now let's recall the rules.
First, p by q should be in the simplest form. Second, q should have factors either 2 or 5 or both. यानी कि उसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 2 raised to power m 5 raised to power n where m and n are whole numbers. whole numbers मतलब 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकते हैं. जैसे इस केस में क्या था, q के फैक्टर्स हैं 4 2 into 2. दिस कैन बी रिटन एज 2 raised to power 2. इसमें m क्या है, अगर हम दोनों को कंपेयर करें, m है 2 और 5 नहीं है, तो आई कैन से 5 raised to power 0 है यहाँ पर. सो 5 की पावर यहाँ पर 0 है. इस केस में q है हमारा 5, यानी कि q की पावर 1 है और 2 की पावर क्या है 0. सो इस केस में m हमारा 0 है और n हमारा 1 है. इसके अलावा अगर q का कोई और फैक्टर होता है 2 और 5 के अलावा, उस केस में यानी कि हम उसको इस फॉर्म में नहीं लिख सकते. उस केस में हमारे पास आ जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग रैशनल नंबर. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. इसमें q क्या है, q है 2 raised to power 3 5 raised to power 4. एज वी कैन सी q के फैक्टर्स 2 और 5 दोनों हैं और इस फॉर्म में भी है, सो इट इज टर्मिनेटिंग. नेक्स्ट इज 77 by 210. Again there is some common factor in these two, numerator and denominator. So उसको पहले हम कैंसिल करेंगे. कॉमन फैक्टर क्या है यहाँ पर 7. तो जब हम इसको 7 से कैंसिल करेंगे हमारे पास आ जाएगा 11 upon 30. नाउ q इज इक्वल टू 30. 30 के फैक्टर्स हो जाएंगे हमारे 2 into 3 into 5. अब इस केस में क्या है, q का फैक्टर है 3 अदर देन 2 और 5. सो इस केस में ये वाली कंडीशन हमारी लगेगी, q हैज सम फैक्टर अदर देन 2 और 5. सो इस केस में ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. नेक्स्ट 441 upon 5 into 7 square. इस केस में अगेन यू हैव टू चेक कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं है. यहाँ पर 441 डिविजिबल है 7 से. सो जब हम इसको 7 से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, दिस गोज बाय 63 upon 5 into 1 7 is still there. Now 63 is again divisible by 7, so what we get is 9 by 5. So this is the simplest form of this number, so we'll check for this number, not for this. So इस केस में q हमारे पास क्या है 5. Again q has factor only 5, so it is terminating. So यहाँ पर हमने क्या देखा, कोई भी रैशनल नंबर अगर हमें दिया हुआ है तो हम उसको चेक कर सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है बिना एक्चुअल डिवीजन के. नाउ इसको एक स्टेप और फर्दर ले जाते हैं कि अगर वो टर्मिनेटिंग है तो इसको हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या बिना एक्चुअल डिवीजन के. यस वी कैन. हमें पता है अगर हमारे पास सपोज 1/10 है, इसको हम लिख सकते हैं 0.1. अगर मेरे पास सपोज 3/100 है, इसको हम लिख सकते हैं 0.03. आई होप ऑल ऑफ यू नो हाउ टू राइट इट. अभी हमारे डेसिमल प्लेस यहाँ पर है. अगर हम इसको 100 से डिवाइड करें तो डेसिमल प्लेस 2 प्लेस से शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट में. तो यहां से शिफ्ट हुआ ये 1 प्लेस एंड 2 प्लेस यहाँ आ गया. एक्स्ट्रा स्पेसेस टू बी फिल्ड बाय 0. सेम वे इफ यू हैव सपोज 7 upon 10,000, तो अभी हमारा डेसिमल प्लेस यहाँ पर है. यहां से हमें 4 जीरोस हैं तो 4 प्लेस शिफ्ट करना है. 1 2 3 4, यानी कि डेसिमल हमारे यहाँ आ जाएगा. उससे पहले हम 0 लगाते हैं और ये एक्स्ट्रा प्लेसेस 0 से फिल होंगे, यानी कि आंसर आ जाएगा 0.0007. इट मीन्स कि अगर हमारे डिनोमिनेटर 10 है या 10 का कोई भी मल्टीपल है तो उसको हम डायरेक्टली डेसिमल प्लेस में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो इसी लॉजिक के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास नंबर ये है, q है हमारे पास 2 स्क्वायर, डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 स्क्वायर है, तो इसको 10 का मल्टीपल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, 10 के फैक्टर्स होते हैं 2 और 5. तो यानी कि हमें जितने 2 है उतने ही 5 चाहिए. 100 में क्या है 2 स्क्वायर है और 5 स्क्वायर है. 2 2 बार आ रहा है, 5 भी 2 बार आ रहा है. इसमें फैक्टर्स 2 raised to power 4 एंड 5 raised to power 4, यानी कि जितने 2 है उतने ही हमें 5 चाहिए 10 के मल्टीपल्स के लिए.
तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2 है, 2 स्क्वायर, यानी कि 2 हमारे पास 2 बार है, तो इतने ही हमें 5 चाहिए, यानी कि हमें क्या चाहिए, 7/4 हमारे पास नंबर है, और आई कैन से 7/2 स्क्वायर है। अब मुझे क्या चाहिए, 5 स्क्वायर, यानी कि मैं दोनों को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अगर मैं 5 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं तो न्यूमरेटर हो जाएगा 7 इंटू 5 स्क्वायर इज 25, एंड दिस इज 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, आई कैन राइट दिस एज 2 इंटू 5 का स्क्वायर, वो हो जाएगा 10 का स्क्वायर। 7 इंटू 25 इज 175, एंड दिस इज 10 स्क्वायर, यानी कि 100. So 175 divided by 10 square, I can write this as 1.75, that is number with 2 zeros, so 2 decimal places. Clear? So see how easy it is to write any number. Like here, this is the number given, to write it in the decimal form, जिसमें हमने division बिल्कुल भी use नहीं किया. Same way, let's proceed for this. यहाँ पर Q क्या है, 5. Number है हमारा 2/5. So 2/5 5 है हमारे पास, तो उतना ही हमें 2 चाहिए, तो इसमें हमें क्या चाहिए, एक 2 चाहिए, सो इट बिकम्स 4/10, सो आई कैन राइट दिस एज 0.4. नेक्स्ट इज दिस नंबर. अब इसमें हमारे पास क्या है, 2 क्यूब है और 5 4 है, 5/4 है, 5 4 बार आ रहा है, क्यू हमारे पास सिर्फ 3 बार है, 2 हमारे पास सिर्फ 3 बार है, तो हमें क्या चाहिए, एक 2 चाहिए, सो इस 23/2 क्यूब इंटू 5/4 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो कम है, यानी कि एक 2 से, सो वी गेट द नंबर 46/2/4 इंटू 5/4, दैट इज 10/4, यानी कि 4 डेसिमल प्लेसेस, तो ये हो जाएगा 0046. 2 हमारे पास ऑलरेडी है, 2 हम जीरोस फिल कर देंगे. सी क्वाइट easy it is if we follow this method to convert a rational number, terminating rational number, to decimal form. Now this one is non-terminating but repeating, so this we cannot convert in this form. इसके लिए दूसरा method है जो आप already 9th class में कर चुके हो. Now for this one, here the number is 63. The simplest form is 9/5. Q is 5, so 5 इसके पास already है. अब हमें क्या चाहिए, 2. So we divide and multiply by 2. हमारे पास आ गया 18/10. So that can be written as 1.8. As you can see, all these are terminating decimals. अब इसमें एक चीज और जो हम फाइंड कर सकते हैं बिना एक्चुअल डिवीजन के, कि अगर हमारे पास ये नंबर दिया हुआ है तो इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस होंगे, कितने डेसिमल प्लेसेस होंगे वो हम डायरेक्टली क्यू से पता लगा सकते हैं. क्यू क्या है हमारे पास, 2 स्क्वायर, 2 की पावर क्या है 2, तो इसमें हमारे पास 2 डेसिमल प्लेसेस होंगे. यहाँ पर क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म 2/5, 5 की पावर क्या है 1, तो यहाँ पर एक डेसिमल प्लेस होगा. अब इस केस में क्या है, 2 क्यूब एंड 5 4, सो जिसकी भी ज्यादा पावर है ऑब्वियसली हमें टर्मिनेटिंग कन्वर्ट करने के लिए उतने ही सेम पावर करनी होगी. सो जितनी ज्यादा पावर है 4 है, तो यहाँ पर 4 डेसिमल प्लेसेस हैं. यहाँ पर 5 की पावर 1 है तो एक डेसिमल प्लेस है. So this is a simple way to convert a terminating rational number from p by q form to the decimal form and to know how many decimal places it will have. Now we have seen rational and irrational numbers. Let's see some questions where we have to prove that a particular number is an irrational number. For example, √2 is given, 3 minus 2 √5 is given. We have to prove these are irrational. For this we are going to use contradiction method, but before we start with this, let's go through one theorem. This result we'll be using in proving this irrationality. Let p be a prime number. If p divides a square, then p divides a also. Let's take an example. 36 के prime factors हैं 3. 36 is what, 6 square, और यानी कि हम कह सकते हैं 3 6 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, 36 को डिवाइड कर रहा है, तो 3 6 को भी डिवाइड करेगा. सिंपल, जो फैक्टर्स हमारे 6 में आ रहे हैं वो 6 स्क्वायर में भी आएंगे. तो अगर हम p कोई भी प्राइम फैक्टर a स्क्वायर का ले रहे हैं तो वो a का भी फैक्टर होगा. क्लियर? नाउ फॉर प्रूविंग दिस वी हैव टू प्रूव दैट √2 इज इरैशनल. कॉन्ट्रडिक्शन मेथड में हम क्या करते हैं, जो हमें प्रूव करना होता है हम उसका उल्टा लेकर स्टार्ट करते हैं. अब हमें प्रूव क्या करना है कि √2 इरैशनल है. इसका
कॉन्ट्रडिक्शन क्या होगा कि रूट टू रैशनल है. सो लेट इफ पॉसिबल रूट टू इज अ रैशनल नंबर. अब क्योंकि ये रैशनल नंबर है हम इसको p बाय क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर p और q क्या है, इंटीजर्स है और q जीरो नहीं है. फर्दर p बाय क्यू फॉर्म से हमने a बाय v फॉर्म में कन्वर्ट किया. a बाय b कौन सी आ गई, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई. क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, a और b में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो a एंड b क्या है, यहाँ पर कोप्राइम है. कोप्राइम मीन्स देयर इज नो कॉमन फैक्टर बिटवीन a एंड b. जो भी कॉमन फैक्टर थे p और q के वो हमने कैंसिल कर दिए. उसके बाद में हमारी ये सिंपलेस्ट फॉर्म आई है. नाउ इफ आई टेक b ऑन दिस साइड, रूट टू b इज इक्वल टू a. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी गेट 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर. अब 2 इंटू सम नंबर इज इक्वल टू a स्क्वायर. इसका मतलब क्या हुआ, 2a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है. अब ये वाली थ्योरम अगर हम यूज कर रहे हैं, प्राइम नंबर है यहाँ पर 2a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2a को भी डिवाइड करेगा. यानी कि 2 क्या है, a का फैक्टर है. अब 2a का फैक्टर है तो a को मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू सम इंटीजर c. c आई हैव टेकन एज एनी इंटीजर. नाउ अगेन इफ आई स्क्वायर बोथ साइड्स, a स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर. अब a स्क्वायर हमारा पहले आया था 2b स्क्वायर. यहाँ से हम a स्क्वायर की वैल्यू डालेंगे 2b स्क्वायर. सो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर. कैंसिलिंग 2 फ्रॉम बोथ साइड्स, b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर. अब यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, b स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू सम नंबर. यानी कि 2 क्या है, b स्क्वायर का फैक्टर है. सो आई कैन से 2 डिवाइड्स b स्क्वायर. दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड्स b बाय दिस थ्योरम अगेन. अब 2 डिवाइड्स b स्क्वायर इंप्लाइज 2 डिवाइड्स b. 2 डिवाइड्स b. अभी हमारे पास क्या रिजल्ट आया था, 2 डिवाइड्स a. अगर हम a और b को साथ में देखें, 2 डिवाइड्स a एंड 2 डिवाइड्स b, यानी कि 2 डिवाइड्स बोथ a एंड b. अब दोनों को डिवाइड कर रहे हैं यानी कि 2 क्या हो गया, इनका कॉमन फैक्टर हो गया. पर हमने अज्यूम क्या किया था कि a और b ये कोप्राइम है, यानी कि इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है. हमने अज्यूम तो किया था कि कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, बट फिर भी 2 इनका कॉमन फैक्टर आ रहा है. तो ये क्यों आ रहा है, क्योंकि जो हमने स्टार्टिंग में अज्यूम किया था वही गलत था. ये अजम्पशन हमारी गलत थी, इसीलिए हमारा ये कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है. यानी कि जो हमने अज्यूम किया था वो गलत था. हमने अज्यूम किया था कि रूट टू रैशनल है, देयरफॉर रूट टू कैन नॉट बी रैशनल, इट हैज टू बी एन इरैशनल नंबर. दिस इज द प्रूफ वी गिव फॉर रूट टू एंड root of any prime number like root 3, root 5, root 7. Same steps we follow as we have followed for root 2. Let's take some other example. Suppose we have to prove 3 minus 2 root 5 is irrational. And in this case, it is given that root 5 is irrational. In this case also we follow the same contradiction method. हमें प्रूफ करना है 3 minus 2 root 5 irrational है, तो इसका contradiction क्या हो जाएगा, let if possible 3 minus 2 root 5 is rational. अब ये अगर रैशनल है तो इसको हम p by q फॉर्म में लिख सकते हैं. फर्दर हम इसको a by b फॉर्म में लिख सकते हैं, where a and b are co-prime. So I am writing it directly as a by b form. a and b are co-prime. नाउ इस केस में हमें क्या करना होता है कि रूट 5 हमें पता है इरैशनल है, तो रूट 5 सिर्फ हम एक साइड रखेंगे, बाकी सारे नंबर्स हम दूसरी साइड ले जाएंगे. लाइक माइनस 2 रूट 5 आई कीप दिस साइड. 3 हम वहां ले जाएंगे तो ये हो जाएगा a बाय b माइनस 3. टेकिंग एलसीएम वी गेट a माइनस 3b अपॉन b. माइनस रूट 2 और है, माइनस रूट 2 को वहां ले जाएंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ बचेगा रूट 5. रूट 5 इज इक्वल टू a माइनस 3b. यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो रहा था, राइट साइड में आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, माइनस 2b. फर्दर इस माइनस साइन को हम न्यूमरेटर के साथ लिख सकते हैं, तो आ जाएगा हमारे पास रूट 5 इज इक्वल टू माइनस यहाँ आएगा तो न्यूमरेटर का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3b माइनस a अपॉन 2b. अब अगर यहाँ पर हम देखें राइट हैंड साइड में हमारे पास a और b है. a और b क्या है, को प्राइम नंबर्स है, इंटीजर्स है, तो a b यानी कि ये न्यूमरेटर भी हमारा इंटीजर हो गया, डिनोमिनेटर भी इंटीजर हो गया, वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0. तो ये क्या होगी, p बाई क्यू फॉर्म हो गई. p बाई क्यू फॉर्म है यानी कि RHS इज रैशनल.
but LHS क्या है, √5, which is given to be irrational. ये हमारा क्या हुआ, ये कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, क्योंकि इरेशनल नंबर रैशनल के इक्वल तो हो नहीं सकता. सो दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेस ड्यू टू रॉन्ग अजम्पशन दैट दिस इज रैशनल. तो ये कभी भी रैशनल नहीं हो सकता, दिस इज ऑलवेज इरेशनल. Similar proof we follow for the expressions like we have, suppose let's take 2 plus 3 √5 minus 7 √2, 6 minus 8 √3. So for all these we follow the similar reasoning, provided it's given that √2, √5, √2, √3 are irrational. In case it's a 2 marker, we take it for granted that √5 is irrational. In case it's a 4 marker and no such condition is given, then in that case, if this question comes, then first you need to prove √5 is irrational using all these steps. After that, you will prove that 2 plus √3 is irrational using these steps. Moreover, two important results. First is, if we add rational number to irrational number, the result is always irrational. And product of a non-zero rational number with irrational number is also irrational. These reasonings also can be used sometimes for proving these are irrational. But the preferred choice is this one. Thank you. We really hope that you liked our video as well as gained some useful info. We will continually post more and more interesting and informative videos in the upcoming future. So, please share our videos as much as possible. Hit the like button, subscribe to our channel, and don't forget to press the bell icon.